Hi guys, what's up? Am I audible, visible? Can someone confirm? Good morning everybody. Check, check, hello. So welcome to the class. Today it's day 4 for the question batch. आज का जो हमारा टारगेट है रैप वाला चैप्टर इन्वेस्टिगेशन एंड फिस्कल है. जल्दी से मेरे को चैट में लिख के बताया मैं ऑडिबल एंड विजिबल. Hi Prerna, am I audible, visible? Can you confirm? ग्रेट. सो आज का जो सेशन है जहां हम लोग करने वाले फिस्कल है, रैप है और इन्वेस्टिगेशन. तो पहले हम लोग उठा रहे हैं हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर. सो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आ जाइए इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर पर. बीस क्वेश्चन है. 20 क्वेश्चन. सो इसमें 3 चैप्टर कवर है गाइस. सॉरी, इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस कवर है, फॉरेंसिक अलग है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 20. हाय एमजी, कैसा है? हाय मरियम. नाउ देखिए, अभी सीए संजना is acting as a credit manager in the branch of DFC Bank Limited. A company has approached the branch for a request to sanction credit facilities worth 10 crore for meeting usual business requirement, and it is a prospective new client. She checks past history of the company, background of the promoters and directors, shareholding pattern and nature of business. सब चीज़ उन्होंने चेक किया. Assessment of financial results of past years and future projections is also undertaken. She also carries a SWOT analysis. ये सब उन्होंने काम कर दिया. Besides, assessment of net worth of directors also undertaken. Status of CIBIL score and position of the name of promoters, directors and RBI defaulter is also verified. ये सब उन्होंने चेक किया. She also made discrete inquiry from few clients of the branch engage in similar line of activity regarding creditworthiness of a company, its promoters and directors. तो पूरी स्टोरी है. 3 क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन. ठीक है. पहला, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म बाय सीए संजना एंड डिस्कस इट्स नेचर. सर दीदी क्या कर रही है? सर दीदी, संजना दीदी जो है वो कर रही है दीदी क्या कर रही है? सर दीदी ड्यू डिलिजेंस कर रही है. दीदी क्या कर रही है? ड्यू डिलिजेंस. तो क्या करना है अपने को? डेफिनेशन लिखना है. आइडेंटिफाई द एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म एंड डिस्कस इट्स नेचर. तो आपको ड्यू डिलिजेंस का डेफिनेशन लिखने का है. वहां पर पूरा इन लोगों को डेफिनेशन लिखा हुआ है. नंबर 2, वुड योर आंसर बी डिफरेंट if this activity was to be performed by a person not qualified as a CA? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता. Can a non-CA perform such activity? The answer is yes. बिंदास. A non-CA can perform such activity because due diligence करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए. ऐसा कहाँ लिखा कि CA होना चाहिए? नहीं ना सर. There would be no difference if the above activity was to be performed by a person who is not a CA. The activity still would remain due diligence. Due diligence can be performed by any person. It is not necessary that it should be done only by a chartered accountant. ठीक है. Third, name any 3 areas where the identified activity can be taken. मतलब identified activity मतलब due diligence कहाँ ले सकते सर अपन? Venture capital financing के लिए, corporate restructuring के लिए, public offering के लिए. हो गया आंसर. तो क्या है, ये नया क्वेश्चन है ड्यू डिलिजेंस पर. इसमें डीडी की डेफिनेशन आई, फिर पूछा कि क्वालिफिकेशन की बातें भी आ गई और कहाँ का 3 एरियाज है. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग हो गया एंड पब्लिक ऑफरिंग्स हो गया. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 19. जैसे इस बार मैनेजमेंट रिपोर्ट पर आया था, पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी आ चुका. ये आपका इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आगे. What are the important issues to be kept in mind by the investigator while preparing the report?
What are the important issues to be kept in mind by the investigator while preparing his report? Important points to be kept in mind by the investigator. Sir, report simple होने चाहिए, detail oriented होनी चाहिए, रीडर को अपर मोस्ट रखने का, एकदम जनरल वाला जो आंसर है ना, टाइटल क्लियर होना चाहिए, स्कोप कवर होना चाहिए वहाँ पर, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स. तो ये जो कॉमन आंसर बनाए थे अपन मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए भी, फॉरेंसिक के लिए, सबका आंसर सेम है, कॉमन है. नया आंसर पढ़ोगे पागल हो जाओगे. देखो यहाँ पर मिलेगा भी properly, every word of expression used should be properly considered, facts and conclusions should be properly linked with evidence, फिर assumption should be explicitly stated, nature and objective वहाँ पर कवर होना चाहिए, findings आपको याद होगा, findings, recommendation, suggestion भी अपन लिखते हैं वहाँ पर, याद है ऐसा कुछ. तो बिंदास ओन भाषा मेरे को 4 में से 2-2.5 तो मिल ही जाएगा, 4 में से 2-2.5 तो मिल ही जाएगा, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? During the process of extracting the exception reports, the auditor noted numerous purchase entries without valid purchases. In terms of percentage, about 40% of the purchases were made without valid purchase orders, whereas few purchase orders were validated after the actual purchase. Also, there was no reconciliation between the goods received and the goods ordered. ठीक है, क्या पूछ रहा है? पूरा स्टोरी है, ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द वैलिडिटी ऑफ अकाउंट बैलेंस लेवल. अब यहाँ पर अकाउंट बैलेंस लेवल मतलब क्या पूछा आपने से? ये अकाउंट बैलेंस क्रेडिटर अकाउंट मतलब बैलेंस शीट आइटम. ठीक है, अपने को ऑडिट प्रोसीजर फॉर क्रेडिटर्स चेक करना है, मतलब परचेज एंड क्रेडिटर्स आपको चेक करना है पर. तो फॉलोइंग इज अ प्रोसीजर. अब यहाँ पर है ना जेनरिक आंसर की जगह पर ये वाला आंसर लिखेंगे अपन. सर, मेक अ सिलेक्शन ऑफ परचेजेस, चेक द करस्पॉन्डेंस विद द वेंडर्स. ठीक है, देन चेक परचेज रिक्विजिशंस, दैट इज इंटरनल डॉक्यूमेंट. फिर मीट विद द कंपनीज परचेज ऑफिसर एंड ऑब्टेन रिस्पॉन्सेज टू आवर इंक्वायरीज. Discuss the summary of such issues with the client. Review vendor listing along with the aging details and follow up for the material amounts paid. 4 पॉइंट, आधा पेज भरा जाएगा भाई, मार्क्स मिलेगा क्योंकि मॉडल में इतना ही दे रखा है. मेक अ सिलेक्शन ऑफ परचेजेस, रिव्यू करस्पॉन्डेंस विद द वेंडर्स, चेक परचेज रिक्वेस्ट. ये डॉक्यूमेंट की बातें हो गई सारी. देन मीट विद द कंपनीज परचेज ऑफिसर एंड ऑब्टेन रिस्पॉन्सेज टू आवर इंक्वायरीज. फिर डिस्कस द समरी ऑफ सच इश्यूज विद द क्लाइंट. एंड चौथा, रिव्यू वेंडर लिस्टिंग अलॉन्ग विद द एजिंग डिटेल्स. रिव्यू वेंडर लिस्टिंग अलॉन्ग विद द एजिंग डिटेल्स. क्लियर है? Then question number 17. Question number 17. LMN Limited entered into a deal with SP Limited for buying its business of manufacturing wooden products goods. LMN has appointed your firm for conducting due diligence review. तो DD पे question आ गया. And they want to know the cash generating abilities. क्या है बच्चों? Cash generating abilities. What points will you check in order to ensure the manufacturing of SP will be able to meet cash requirements? Cash requirements. तो अब ये कैश की बात है. अब देखो क्या होता है, अपन लोग कहते हैं सर कैश चेक कर लीजिए, कैश इनवर्ट चेक कर लीजिए, सर कैश रिकंसिलिएशन कर लीजिए, वो सब अपन लिख देते हैं पर मार्क्स नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि मॉड्यूल में यही आंसर दिया हुआ है. सर कैश कहाँ से आता है? सर क्या होगा, देखो कैश की बातें कहाँ आती है? डेटर में होती है, क्रेडिटर में होती है, इन्वेस्टमेंट्स में होती है, इन्वेंट्री में होती है. बराबर. सर देखो पहले क्या है, डेटर की बातें करते हैं. हाउ वेल इज अ कंपनी एबल टू कन्वर्ट दिस ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरीज, कितना जल्दी वो बेच पा रहे. ऊपर क्रेडिटर की बात है, कब अपन पेमेंट कर रहे हैं. इज अ कंपनी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू द ट्रेड पेबल्स टू द बैंक टू द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर. तो ये पेमेंट की बात हो गई, ये रिसीट की बात हो गई, पैसा आ गया. हाउ द वेल द कंपनी डिप्लॉयज फंड्स, पैसा कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा, कुछ बेनिफिट आ रहा है क्या. आर देयर एनी फंड्स लाइंग आइडल और इज द कंपनी एबल टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ द अवेलेबल फंड्स. पांचवा, what is the investment pattern of the company and are they easily realizable. What is the investment pattern of the company and are they easily realizable. Clear? So ये 5 पॉइंट है, आधा पेज भरा जाएगा. 4 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क मिल जाएगा. पहला, ट्रेड पेबल्स. इज द कंपनी एबल टू ऑनर द कमिटमेंट टू ट्रेड पेबल्स टू द बैंक गवर्नमेंट. हाउ वेल द कंपनी एबल टू कन्वर्ट इट्स ट्रेड रिसीवेबल. थर्ड, हाउ वेल द कंपनी डिप्लॉयज फंड्स, वहाँ पैसा डाल दिया. सर इज द फंड लाइंग आइडल और द कंपनी एबल टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स. पांचवा, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द कंपनी एंड आर दे इजीली रियलाइजेबल. ठीक है, सो ये आपका कैश रिक्वायरमेंट्स वाला आंसर है. मई 23 का इस बार का जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, वो भी एक अलग आंसर है. ठीक है, मई 23 वाला भी. मई 23 का क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर मॉडल मतलब क्वेश्चन पेपर के ऊपर पे जो आया था, आई थिंक सी या डी क्वेश्चन बना होगा वो. ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल वाला था आई थिंक. देन 16. अब तो परचेज क्रेडिटर्स वाला एक तो आंसर इंपॉर्टेंट है और एक ये इन्वेंट्री वाला आंसर इंपॉर्टेंट है.
अगर इंश को छोटी चीजें पूछे तो ये दोनों में से एक पूछने की संभावना है यहाँ पर। क्या कहता है? MF Limited engaged in the manufacturing of various products in a factory, is concerned with the shortage in production in those area, and there arose suspicion of inventory fraud. You are appointed by MF to evaluate the options for verifying the process to reveal fraud and the corrective action to be taken. As an investigating accountant, what will be, क्या पूछ रहे हैं? What will be areas of verification and the procedure to be followed for verification for defalcation of inventory, defalcation of inventory, ठीक है? तो अब देखो इसमें ना आंसर को कैसे, अभी इतना बड़ा आंसर है मॉडल में जो दे रखा है, अब इतना बड़ा तो अपने को एग्जाम में याद होगा नहीं, क्या करने का अपने को? पहले आपको रीजन बता, इन्वेंट्री में फ्रॉड कैसे कैसे होता है सर, कैसे कैसे हो सकता है? सिंपल भाषा में, फ्रॉड्स इन इन्वेंट्री कैन बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग वेज. एम्प्लॉयज में सिंपली रिमूव द गुड्स, theft of the good may be concealed by writing of them as damaged goods. अच्छा, inventory records may be manipulated, ठीक है? अब कैसे चेक करोगे? Such thefts usually are possible through collusion of number of person, मतलब लोग मिलके फ्रॉड वर्ड कर रहे हैं वहां पर. Therefore, the auditor should evaluate the internal control system of receipts, storage, dispatch of goods. फिर the determination of factors which have been responsible for the theft and the establishment of guilt would be difficult in the absence of, अगर ICS वहाँ पर नहीं होगा या डेटा नहीं मिलता, अपन चेक ही नहीं कर पाएंगे. Then the step in such an investigation is to establish the different types of inventory default and the quantities with and tally कीजिए उसको physical inventory count से, कौन कौन से प्रकार की इन्वेंट्री चोरी हुई है, कितनी चोरी हुई है, और उसको फिजिकल आपका जो रिकॉर्ड्स है उससे जाके वेरीफाई कीजिए. फिर डिफॉल्केशन ऑफ इन्वेंट्री समटाइम्स आर आल्सो कमिटेड बाय द मैनेजमेंट, जैसे कभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर दे वहाँ पर. फिर डाइवर्टिंग अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सिक्वेंट शॉर्टेज इन द प्रोडक्शन बीइंग एडजस्टेड बाय इन्फ्लेटिंग द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन. तो ये पीछे का जो पार्ट है तो स्टार्टिंग क्या करने का, आईसीए से मैच कर देने का. इन्वेंट्री फ्रॉड कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. फिर आपको क्या चेक करना चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विद रिगार्ड्स टू स्टोरेज रिसीट्स एंड डिस्पैच. फिर क्या बोलेगा, डिफरेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री जो डिफॉल्ट हुई है वो चेक कर लीजिए बाय वेरीफाइंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग. ठीक है, बस इतना लिख लो, 4 में से 3 तो आ ही जाएगा. इन्वेंट्री वाला आंसर एंड ये कैश वाला आंसर, ये दोनों, सॉरी क्रेडिटर्स वाला आंसर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. देन अब ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्वॉल्व व्हाइल कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर. अब पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हमारी पार्टनरशिप, अब ये जेनरिक आंसर एकदम. अब हमारी पार्टनरशिप फर्म है, अभी अज्यूम करो ट्विंकल को हमारी फर्म में आने का, तो ट्विंकल ने आपको अपॉइंट कर लिया है. अब ट्विंकल ने आपको अपॉइंट किया, बोल रहे कि ये बताओ मैं इस फर्म में ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ. तो क्या करने का सर, कंपनी हो या फर्म हो कुछ भी हो, हर एक के एट्रीब्यूट्स लिखने का. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, असेट चेक करेंगे, लायबिलिटी चेक करेंगे, इनकम चेक करेंगे, एक्सपेंस चेक करेंगे, मेजर क्लाइंट चेक करेंगे सर, मार्केट क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे, मार्केट शेयर चेक करेंगे, क्लाइंटल चेक करेंगे सर यहाँ पर क्योंकि पार्टनरशिप की बात हो रही है तो सर पार्टनरशिप डीड करनी पड़ेगी, पीएसआर चेक करना पड़ेगा, और उनका कैपिटल सेफ रहेगा या नहीं रहेगा वो देखना पड़ेगा. गुडविल चेक कर लेंगे अपन, हो गया आंसर. एंड हर एक आगे चेक की जगह भाई चेक, वाउच, वेरीफाई, एग्जामिन, एंश्योर, कंप्लाई, स्क्रूटिनाइज, सर्टेन, इवैल्यूएट, ये सब लिखने का आपको, हो गया आंसर. करेक्ट ट्विंकल, वेरी गुड. क्लियर. देन क्वेश्चन नंबर 14. अब X Limited is intending to acquire A Limited. It hires B and Co, a firm of CS, to conduct a due diligence. ठीक है, B and Co wants to reduce the risk of overvaluation of assets. So दो आंसर मिलेंगे, एक हिडन लाइबिलिटीज और एक ओवरवैल्यूएशन ऑफ असेट्स. ठीक है, वो दोनों जीडी चैप्टर के हॉट फेवरेट आंसर हुआ करते थे आईसीए के एक टाइम पर. अभी तो आ नहीं रहे, पर हाँ आपको एमसीक्यू में कभी पहचानने को आज बताइए किसका रीजन है, हिडन लाइबिलिटीज का है या फिर ओवरवैल्यूएशन ऑफ असेट का है. ठीक है, अब ओवरवैल्यूड एसेट के लिए क्या चेक करें, तो सीधा लिखोगे फॉलोइंग थिंग्स शुड बी चेक फॉर ओवरवैल्यूड एसेट. सर 10 है, 6 या 7 तो याद करके जाना ही पड़ेगा. अनकलेक्टेबल रिसीवेबल क्या है, अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स. नंबर 2, स्लो नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज और इन्वेंट्रीज अबव एनआरवी, अंडर यूज और ऑब्सोलीट प्लांट एंड मशीनरी, लिटिगेटेड असेट्स एंड प्रॉपर्टी. अच्छा, असेट्स कैरिड मच मोर देन मार्केट वैल्यू ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज. इन्वेस्टमेंट कैरिड कॉस्ट दो मार्केट वैल्यू इज लोअर, या फिर इन्वेस्टमेंट कैरिंग अ वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनकम. इनफ्रक्टस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, ग्रुप बैलेंसेस अंडर रिकंसिलिएशन एंड इंटेंजिबल्स ऑफ नो वैल्यू.
तो जो इजी पॉइंट है पहले वो याद कर लो, जैसे ये वाला पॉइंट, अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स, लिटिगेटेड एसेट्स, इनएलिजिबल्स ऑफ नो वैल्यू। फिर 2 पॉइंट इन्वेस्टमेंट के हो गए, इन्वेस्टमेंट कैरिंग एट कॉस्ट, दो मार्केट वैल्यू इज वेरी मच लोअर, देन इन्वेस्टमेंट कैरिंग अ वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न। फिर लिख दीजिए इन फ्रक्टस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो लिख दीजिए, हो गया आंसर। 10 में से 6-7 याद करने ही पड़ेंगे अपने को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट की तरफ से। इसका एक और क्वेश्चन आगे मिलेगा अपने को। देन अब क्वेश्चन 13 इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, पूरा कहानी गा दिया। तो जो अपन ने पार्टनरशिप फॉर्म वाला आंसर पढ़ा वही ये लिखने का, वही अगर लोन वाला क्वेश्चन था कि कंपनी को लोन देने का, बैंक को लोन देने का, तो क्या चाहिए, सेम आंसर है। मिस्टर क्लीन हु प्रपोजेस टू बाय द प्रोप्राइटर बिजनेस मिस्टर परफेक्ट एंगेजेस यूर इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंट, क्या चेक करोगे, वही कॉमन आंसर जो पार्टनरशिप फॉर्म में अभी अपन ने बोला वही लिख देंगे। अभी इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो ला 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 ला, ये पूरा चैप्टर कॉपी कर दिया है, ला 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 ला, पूरा चैप्टर कॉपी कर दिया, इतना लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इन अ कंपनी इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर हैज बीन एन एम्बेजलमेंट इन कैश रिसीट्स में जो झोलझा पड़ा हुआ है, व्हाट एरियाज वुड वेरीफाई। तो जैसे इन्वेंट्री का था, क्रेडिटर्स का था, अभी तीसरा आ गया आपका कैश रिसीट्स का। सर क्या चेक, कैश रिसीट है ना, तो सर फेक एम्प्लॉयज को पेमेंट कर दियोगे वहाँ पर, बैंक से पैसे विड्रॉ कर दिया, कैश बुक में नहीं डाला वहाँ पर। सो सर इशूइंग अ रिसीट टू द पे फॉर फुल अमाउंट कलेक्टेड एंड एंटरिंग ओनली अ पार्ट अमाउंट इन द काउंटर फाइल। सर शोइंग अ लार्ज कैश डिस्काउंट देन एक्चुअली अलाउड, बच्चे को बोला सर डिस्काउंट है, कोई डिस्काउंट नहीं है वहाँ पर, पैसा अपनी जेब में रख लिया। एडजस्टिंग अ फिक्टिशियस क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ कस्टमर फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय हिम। फिर कैश सेल को क्या दिखा दिया, क्रेडिट सेल दिखा दिया, तो कैश लेके उड़ गया अभी। राइटिंग ऑफ गुड डेट एज अ बैड एंड इरिकवरेबल डेट, पैसा दे दिया था उसने, पैसा अकाउंटेंट ने जेब में रख लिया, क्या दिखा दिया उसको, बैड डेट कर दिया, फिर राइट ऑफ कर दिया। फिर शॉर्ट डेबिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट विद इन द लेजर विद एन इंटेंशन टू विड्रॉ द डिफरेंस। फिर अंडर कास्टिंग द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक और ओवर कास्टिंग द पेमेंट साइड, फेक पेमेंट कर रखी अपन ने। क्लियर, कैश रिसीट्स भी एक इंपॉर्टेंट, तो 3 आंसर इंपॉर्टेंट, परचेज वाला आंसर, मैंने परचेज एंड क्रेडिट दोनों साथ में चल रहे, कैश रिसीट वाला आंसर हो गया आपका और इन्वेंट्री वाला आंसर हो गया। देन 11, a national bank has received an application from an export company seeking sanction of term loan। अब एक बैंक है वो लोन देना चाह रहा है, तुमको इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया है, क्या पूछ रहा है, लिस्ट आउट द पॉइंट्स विल कवर इन द इन्वेस्टिगेशन बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल मैनेजर। सभी लोन दे रहे हैं ना सर, लोन दे रहे हो आप, तो लोन तो कॉमन सेंस ना, बैंक लोन दे रहा है तो सर पर्पस क्या, कोलैटरल है, क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर, बाकी फिर कंपनी के बारे में शेयर कैपिटल चेक कीजिए, डिविडेंड यील्ड रेशियो चेक कीजिए, क्लाइंटल चेक कीजिए, असेट चेक कीजिए, इनकम चेक कीजिए, लायबिलिटी चेक कीजिए, हो गया आंसर खत्म, कॉमन आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगा के करने का, और हर क्या के चेक, वाउच, वेरीफाई, एग्जामिन, एंश्योर, कंप्लाई, स्क्रूटिनाइज। क्लियर, कॉमन आंसर। हाय राज, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 की वेटेज कम हो जाएगी, रीजन बीइंग क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी योर अप्रोच इन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210 एंड 213 इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी, क्योंकि लॉ का ज्यादा वेटेज है तो लॉ वाला कंटेंट लिखने का। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट के ऑडिट के इतने सारे क्वेश्चन तो बहुत रेयर अगर पूछे तो, ठीक है, खाली रीड कर लीजिएगा, बुक में है, इसलिए मैंने कहा रीड इफ टाइम परमिट्स। क्वेश्चन नंबर 9, you have been appointed as an appointed to investigate suspected embezzlement of cash receipts, अभी जो अपन कर रहा है इन डिपार्टमेंटल स्टोर, व्हाट विल यू चेक। तो जो अभी अपन ने पढ़ा ना वही वो पूरा आंसर लिख देने का। यहाँ पर कहानी बना के पूछा, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द एरियाज इन विच डीडी कैन टेक प्लेस, सीपीटी फाइल, कमर्शियल, पर्सनल, टैक्स, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल, एनवायरमेंटल, सीपीटी फाइल, सीपीटी फाइल। क्लियर, सीपीटी फाइल।
Question number 7. A company engaged in manufacturing of chemicals is consistently recording higher sales turnover but declining net profit. तो sales बढ़ रही है, net profit गिर रहा है, net profit गिर रहा है. As an investigator appointed to find out the reason for this, what points will you verify? तो क्या करने का, अब इसको रट्टा मारने से अच्छा अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया अपन ने. सर सेल्स बढ़ रही है पर मेरा नेट प्रॉफिट गिर रहा है, नेट प्रॉफिट गिर रहा है. क्या होगा सर, ये सब बढ़ रहे होंगे, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे वहाँ पर, बराबर. ओपनिंग स्टॉक का हायर वैल्यूएशन होगा, बोगस परचेजेस होंगे मेरे वहाँ पर, इन्फ्लेटेड परचेजेस होंगे, बोगस एक्सपेंसेस होंगे, वेजेस होगा, फ्रेट होगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, चेंज इन सेल्स मिक्स हो सकता है. सो अनफेवरेबल सेल्स मिक्स हो गया आपका. हेडिंग लिखा, देन एक्सप्लेनिंग द पॉइंट. नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज वेयर द कंपनी डज नॉट हैव अ सफिशिएंट ओन फंड्स. तो क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही होगी वहाँ पर आपकी. अदर आइटम्स इंक्लूडेड इन सेल्स, क्या होगा सर, आपने टैक्स वैक्स भी ऐड कर दिया तो गलत है सर. हाई एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंस मतलब इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, कॉस्ट प्राइस रिलेशनशिप मैच नहीं हो रही है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो गया है, एंड एडिशन टू द फिक्स एसेट. तो इसमें 7 पॉइंट रहेगा, कोई भी 5 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो. भूल जाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना के इंक्रीज इन एक्सपेंसेस सब कुछ लिख के आने का. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 6. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख पाएंगे, इजी एकदम. सर ऑडिट होता है पूरे साल का, इन्वेस्टिगेशन कोई भी पीरियड का हो सकता है. ऑडिट ऑडिटर करता है, वो इन्वेस्टिगेटर करता है. ये कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी हो, कोई मैंडेटरी नहीं है. इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है. ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू. इन्वेस्टिगेशन में अपन एस्टैब्लिशिंग ऑफ फैक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर. ऑडिट रिपोर्ट बना के देती है अपन ऑडिटर को. इन्वेस्टिगेशन जाती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को जाती है. यहाँ पर अपन परसुएसिव एविडेंस लेते हैं, वहाँ पर अपन कंक्लूसिव एविडेंस लेते हैं. वहाँ पर अपन सैम्पल अप्रोच और इनडेप्थ कर सकते हैं. इन्वेस्टिगेशन में हमेशा इनडेप्थ होती है. हो गया आंसर, खत्म. और सिखाया था आपको जो डिस्टिंग्विश है, आपको टी फॉर्म में नहीं लिखना है, याद करने के लिए टी फॉर्म ऊपर नीचे लिखना है. पहले अपने ऑडिट की बातें लिखी क्योंकि वो अपने को अच्छे से आती है, फिर उसके नीचे इन्वेस्टिगेशन की बातें लिख दी. क्लियर. Question number 5. Sri Raghav is about 80 years old and wishes to sell his proprietary business in the of manufacturing of specialty chemicals. C Limited wants to buy the business and appoints you to carry out DD audit to decide whether it would be worthwhile to acquire the business. What procedure would you adopt to render any advice to C Limited? Common answer. नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्लाइंटेल क्या है, मार्केट शेयर क्या है, मेजर असेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है. ठीक है, बस रीजन फॉर सेल, क्यों बेच रहा है वो, खत्म. क्वेश्चन नंबर 4. मई 22 या नवंबर 22 का क्वेश्चन है ये. J Limited is interested in acquiring S Limited. The valuation of S Limited is dependent on the future maintainable sales. As a person interested to value S Limited, what factors, क्या बोल रहे हैं, what factors would you consider in assessing future maintainable turnover? Future maintainable turnover. Turnover क्या चेक करें हम? TMC पार्टी, TMC पार्टी, TMC पार्टी, TMC पार्टी. ट्रेंड हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर चेकर आपकी हेडिंग मैच करेगा, पेपर चेकर हेडिंग मैच करेगा. TMC पार्टी, ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, कंपटीशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन. ध्यान रखना, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको रीड कर लीजिए हाथ के हाथ. जिसके पास नहीं है फोटो खींच लीजिए. TMC पार्टी, जो हमसे पढ़ चुके उनको पता होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. आ गई. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉड्स थ्रू सप्लायर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर. ठीक है. कैसे कैसे हो सकता है सर ये? एडजस्टिंग फिक्टिशियस as a duplicate invoice as purchased in the accounts of supplier and subsequently misappropriating the money. Fail. Suppressing the credit notes issued by the suppliers. Withdrawing amount which remain unclaimed more than the time limit. तो जो अपन ने क्रेडिटर वाला आंसर पढ़ा ना, वहाँ पर परचेज वाला, उसी को थोड़ा सा यूज कर लीजिए यहाँ पर. Accepting invoices at a price considerably highest than the market price. तो क्या हो रहा है, 100 रुपये का बिल तो उसका तो 150 का बना, 50 रुपये मेरे घर पे भेज देना. And collecting the excess claim from the suppliers directly. तो 4 रीजन है, 4 लाइन भरी जाएगी, आधा पेज होगा, मार्क्स मिलेगा आपको, मार्क्स मिलेगा.
ये रहा क्वेश्चन नंबर 2. Your client is contemplating taking over a manufacturing concern and desire that in course of due diligence review. तो DD का क्वेश्चन, you should specifically look for any hidden liabilities and overvalued asset. तो overvalued asset का अपन पहले कर आ गए थे. अब ये है कुछ आपकी hidden liabilities. तो hidden liabilities के कोई भी 6 आप याद कर लीजिए. Sir, easy. Hidden liabilities. The company may not have shown any show cause notice which have not matured into demands. Therefore, they may be material and important. फिर टैक्स लाइबिलिटीज अंडर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, लॉन्ग पेंडिंग सेल्स असेसमेंट और कस्टम का अलग भी आ जाएगा. तो पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ कस्टमर. तो ये जो 3 है, ये तीनों रिलेटेड हो जाएंगे टैक्स से. जी डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की लाइबिलिटी, लॉन्ग पेंडिंग सेल्स असेसमेंट, पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी वे प्रोविजनल असेसमेंट ओनली हैज बीन कंप्लीटेड. फिर फ्यूचर लीज लाइबिलिटी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कंटिजेंट लाइबिलिटीज नॉट शोन इन द बुक्स. फिर जो शो कॉज नोटिस आए हैं वो डिमांड में मैच्योर नहीं तो उसको कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं दिखाया गया होगा. हो गया. 6 से 7 पॉइंट याद करके चलिए. यहाँ पर ज़्यादा भी दे रखा है कि ज़्यादा तो अच्छी बात है. 6 से 7 पॉइंट क्या करने का, ईजी वाले याद करेंगे. यूज लेबर क्लेम्स अंडर नेगोशिएशन, है तो बहुत कॉमन है, तो आता ही रहता है. क्लियर. देन क्वेश्चन नंबर 1. An American company engaged in the business of manufacturing and distribution of industrial gases is interested in acquiring a listed Indian company having a market share of more than 65% of the industrial gas business in India. Request to conduct DD of this Indian company. DD. What areas will you cover? तो कॉमन आंसर लिख दिया अपन ने. बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर्स, कंपनी, हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, डिविडेंड यील्ड, ये वो, शेयर कैपिटल, सब लिख दिया. एंड लिस्ट आउट द कंटेंट्स ऑफ DDR. तो जो मुझसे पढ़ चुके अपना कोड था तौबा CPT फाइल से. टर्म्स एंड स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, O से ऑब्जेक्टिव, B से ब्रीफ हिस्ट्री, A से असेसमेंट ऑफ CPT फाइल, S से स्वॉट एनालिसिस, E से एग्जीक्यूटिव समरी. स्वॉट एनालिसिस, एग्जीक्यूटिव समरी, तौबा CPT फाइल से. खत्म, पूरा चैप्टर खत्म. गाइस कैसा लगा कैसा? याद रहेगा तुमको? चैप्टर ओवर. कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रेज हुआ. मरियम, या इट्स ओके इफ यू डोंट स्टडी, इट्स ओके. लॉ वाला पार्ट नहीं होगा तो भी चलेगा. मजा आ गया? बढ़िया. तो ऐसे ही बार बार पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस रेज होते रहिए, कॉन्फिडेंस रेज करते रहिए, जिससे क्या होगा आपको बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं एग्जाम में. मतलब वो एवरी 1 मार्क इज, एवरी हाफ मार्क आई वुड से इज इंपॉर्टेंट टू क्रॉस 39, 59, 69. चलो अभी हम लोग उठाते रैप. रैप वाला चैप्टर. अब रैप वाला चैप्टर थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, करना पड़ेगा. टेक्निकल एक क्वेश्चन तो देख ही जाता है पेपर में, ठीक है, एक क्वेश्चन तो देख ही जाता है. प्लस MCQ में कहीं ना कहीं काम आ जाए तो मेरे को 1-2 मार्क वो मेरे को बेनिफिट करा ही देगा. चलो पेज नंबर है 246. क्या है बच्चों? पेज नंबर 246. अब देखो, तो इसी में आपका ऐसे 315, 330 भी कवर हो जाता है. तो जिन बच्चों को 315, 330 में प्रॉब्लम है, भैया ये क्वेश्चन रट्टा मार लो, यही आएगा एग्जाम में. While commencing the start audit of ABC Limited, what should be the consideration of the auditor to assess ROM and his response to such risk? Consideration of the auditor to assess ROM, तो रिस्क वर्ड लिखता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमेच, तो ऐसे 315, एंड उसका जवाब देने के लिए ऐसे 330 होता है. ठीक है, तो पहले पूरा मस्त नाम लिखने का. एज पर ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. Identifying and assessing the ROM through understanding the entity and its environment. Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. क्या होगा? The auditor should identify and assess the risk at FS level and at assertion level for TABD, transactions, account balance, disclosures.
क्या करना चाहिए सर? उनको 4 बातें कंसिडर करनी चाहिए। पहला, तो यहाँ पर हम कहते थे कि लड़की को भगाना पड़ता है, बराबर। सो आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। अच्छा, लड़की को भगाना तो आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स एनवायरमेंट, रेलेवेंट कंट्रोल्स रिलेटेड टू रिस्क। नंबर 2, assess the identified risk and evaluate whether they relate more pervasively to the FS as a whole। सर चेक करो जो रिस्क है, लड़के के बाबा पॉलिटिशियन है, पता चल गया तो क्या हालत होएगा। सो assess the identified risk and evaluate whether they relate more pervasively to the FS as a whole। थर्ड, relate the identified risk and what can go wrong at assertion level। मेरे को तो विश्वास है इसके पर, मैं कह रहा हूँ आई लव यू, ये भी कह रही है आई लव यू टू, बट कल को के पापा की परी बदल गई तो। रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल। लड़की बदल गई, अगर बदल गई तो क्या होगा? कंसिडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट, जो मैं समझा वो निकली अब्बा डब्बा जब्बा, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट एंड वेदर द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड दैट कुड रिजल्ट इन मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सर जो मेरे को लग रहा है कि गलती हो जाएगी, चेक करो उसकी वजह से और गलती तो हो नहीं सकती। एंड सर जो फ्यूचर में गलती होगी इतनी बड़ी हो जाएगी कि जिससे मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो जाएगा, मेरे घर वालों के, मेरे दोस्तों के, सबके लग जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट हो जाएगा आपका ऐसे 315 का आंसर। 330 सर, अकॉर्डिंग टू द ऐसे 330 ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, क्या करना चाहिए? ही शुड कंसिडर रीजन फॉर द असेसमेंट गिवन फॉर रॉम एट असर्शन लेवल एंड एट टीएबीडी लेवल। फिर ये 2 याद होते ठीक है, तो लिख दीजिए ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क। जितना एविडेंस अच्छा लाओगे तो उतना हायर असेसमेंट ऑफ रिस्क होगा ऑडिटर का, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चेक कर पाऊंगा। 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, ये भी 2-3 बार आ चुका है। इसको लिख दीजिए, सर्कल कर दीजिए, कंसिडरेशन एंड रॉम। रिस्क वर्ड दिखता है बच्चा, ऐसे 315 लिख कर आने का, नाम लिख कर आ जाओगे। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट का 1 मार्क तो इसी का ही है, 1 मार्क तो इसी का ही है। Then B, describe how you would identify the inherent risk at account balance and class of transaction। आगे क्वेश्चन कुछ भी हो, क्या पूछा? आइडेंटिफाई रिस्क को, आई मीन इनहेरेंट रिस्क को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे एट अकाउंट बैलेंस लेवल एंड एट ट्रांजैक्शन लेवल, एट अकाउंट बैलेंस लेवल एंड ट्रांजैक्शन लेवल। तो इसका कोड था बच्चों कास्ट डी, करेक्ट विंकल, कास्ट डी। सर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन, फिर कंप्लीशन ऑफ अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस नियर एट ईयर एंड। ए, quality of accounting system। S, susceptibility of FS to misstatement, susceptibility of FS to misstatement। T, transactions not subject to ordinary processing। and D से degree of judgment involved in determining account balances। तो क्वेश्चन समझना होगा इनहेरेंट रिस्क कौन से लेवल पे पूछा? अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन लेवल पे। तो ये हो जाएगा आपका क्या? कास्ट डी, कास्ट डी। सर एट द लेवल ऑफ FS अगर पूछता है, एट द लेवल ऑफ FS, तो द कोड इज आई एम फन। इसको हम FBI पे भी पढ़ते हैं, FBI पे आई एम फन, ठीक है। क्वेश्चन समझना पड़ा क्या पूछा है, कुछ नहीं पूछा है तो दोनों लिखने का, एट द लेवल ऑफ FS एंड एट द लेवल ऑफ अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस। सर आई एम फन, इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट्स एक्सपीरियंस, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, अनयूजुअल प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट एंड से नेचर ऑफ एंटिटी बिजनेस। आई एम फन, आई एम फन, ठीक है। सो एट द लेवल ऑफ FS, एट द लेवल ऑफ अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस, क्लियर। जिसके पास ये आंसर नहीं है, कोड नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए इसकी। क्वेश्चन समझ होगा, इनहेरेंट रिस्क एट द लेवल ऑफ FS पूछा है, एट द लेवल ऑफ अकाउंट बैलेंस पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, दोनों लिख कर आने का। देख लो, अगर लिखोगे तो आधा पेज ही भरा जाएगा। अगर इधर ऑफ इट अगर आता है, आधा पेज भरेगा, इतना ही लिखना है, मार्क्स मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, सॉक्स से क्वेश्चन नहीं आया तो अभी इसे मूवमेंट आप छोड़ सकते हो। अगर आता है तो खाली मेजर प्रोविजंस ऑफ सॉक्स है, मेजर प्रोविजंस ऑफ सॉक्स, ठीक है। तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मॉडल पे भी नहीं दे रखा है इतना, छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 3,
एक मिनट ना, पेंसिल का इंक खत्म हो गया जरा। बाकी बताओ इतने, हाउस लाइफ, पढ़ाई कैसी चल रही है? एवरीबॉडी, पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉन्फिडेंस आ रहा है भी थोड़ा सा ऑडिट में? दो मिनट, इट विल गेट चार्ज वेरी क्विकली। बाकी कॉन्फिडेंस आ रही है ऑडिट में? डर सबको लगता है, प्यास सबको लगती है। ऑल गुड, ऑल गुड। धनश्री लॉ का रिकॉर्डेड कर रखा है ना, इसीलिए तो यार, क्योंकि टाइम नहीं होता ना मतलब चीज़ों के लिए। अब जैसे आपने देखा इंटर का भी शेड्यूल कर रखा है, तो 2 दिन आपको डिले करके अभी इंटर का कर लेंगे एमसीक्यूज। सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लॉ का रिकॉर्ड अच्छा तो चल रहा है यार, सब लोग देख तो रहे, पूरा इंडिया देख रहा है अभी तो। बैंक का, बैंक ऑडिट का जो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है वो देखो, वो बहुत अच्छे से पड़ा है, उसमें क्वेश्चन भी मार्क करवा रखे हैं और 4 बार रिवाइज भी करवाया है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, हो गया बस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, लेट्स बैक टू पेविलियन गाइस, लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू। प्रोफेशनल एथिक्स पे तो डाला हुआ है ना यूट्यूब पर, ऐसे के क्वेश्चंस एंड प्रोफेशनल तो डाले हुए हैं। फिजिकल लॉस ओनली क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चंस थॉरली। थैंक यू प्रेरणा। देखो अभी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत रेयर पेपर में देखे अपने को। ये क्या कहता है, प्रभु लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू डेवलप आईसीएस, यू आर एक्सपर्ट इन डेवलपिंग द आईसीएस। क्या पूछ रहा है, इन देवा एक्सप्लेन आईसीएस, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आईसीएस इज अ सिस्टम सेट अप बाय द मैनेजमेंट वेंचर डी बाबा एंड व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, collusion among the employees, human error, cost effectiveness, abuse of authority by the management, manipulation by the management. So direct question है ICS की definition and inherent limitation of ICS, ठीक है। So direct question आप skip कर सकते हो रिविजन के टाइम पे, क्योंकि एग्जाम में नहीं आते ना। कंप्लायंस उससे छोड़ सकते हो, नहीं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क एट द लेवल ऑफ SFS। अब ऑडिट रिस्क अगर आपको पता होगा तो आपको क्या बोलने का, एज पर ऐसे जैसे रिस्क वर्ड दिखता है, एज पर ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी इन इट्स एनवायरनमेंट, द ऑडिटर कैन नॉट reduce audit risk to zero, however it can be reduced to an acceptable low level. Some frauds and errors may go undetected because of inherent limitation of audit. Inherent limitations are those limitations which will be existing even if the auditor goes for detailed check. There are 3 types of audit risk: control risk, inherent risk, detection risk. बस तो अगर आपने सीखा होगा CID रिस्क, CID कंट्रोल इनहेरेंट डिटेक्शन हो गया।
एक लाइन में कंट्रोल को डिफाइन कर दो, एक लाइन में इनहेरेंट को कर दो, एक में डिटेक्शन को कर दीजिए, हो गया, खत्म खत्म। क्लियर? देन अब चलो ये आंसर तो सर लिखने का तरीका इंस्टीट्यूट अलग है, आप मेरे को बता क्या लिखोगे? राइट शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स इन इवैल्यूएशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क। कौन सा आंसर लिखेंगे आप इसमें, कौन सा आंसर? फैक्टर्स रेलेवेंट इन इवैल्यूएशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क। फैक्टर्स रेलेवेंट इन इवैल्यूएशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क सर दो थे, एफएस लेवल वाला और अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स वाला। इधर आप लिख दोगे IM फंड, इधर आप लिख दोगे कास्टडी, वो ही लिखने का है। वो ही दिया हुआ, ठीक है? फैक्टर्स inherent risk at FS level and inherent risk at account balance and transaction level, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे का क्वेश्चन है, ऐसे 265 का, देखो क्या कहता है। During the course of audit, the auditor noticed material weakness in the ICS because ICS से related है इसलिए यहाँ पर आ गया, and he wishes to communicate the same to the management. You are required to elucidate the important points to keep in mind while drafting the letter of weakness on in internal control system. Sir, communicating deficiency in ICS to TCWG is SA 265. तो नाम लिख दिया, as per SA 265 communicating deficiency in ICS to TCWG. The auditor shall state क्या चोरी हुई है, description of the deficiency and sufficient information to enable the TCWG to understand the context of communication. फिर अपने लेटर में क्या क्या लिखेगा वो, ध्यान से सुनना भी। So the letter will list down the areas of weakness in the system and offer suggestions for improvement. Now it will discuss only those weaknesses जो ऑडिटर को मिली है, उसके अलावा भी कुछ होगा उसको नहीं पता उसके बारे में। This letter serves as a very valuable reference for the management. The letter may also serve to minimize the legal liability in the event of major defalcation. तो सर मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी का, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, द पोटेंशियल इफेक्ट, बराबर कि उसका क्या नुकसान पहुंचेगा आपको। चिल्ला के बोलेगा भैया मैंने वही वीकनेस बताया जो मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट है, कुछ और भी वीकनेस है मुझे नहीं पता। सर वीकनेस के साथ क्या क्या देगा वो, सजेशन भी देगा, आप सजेशन भी देगा। क्लियर? सॉरी। देन फ्लो चार्ट टेक्निक डायरेक्ट आंसर है, अब यहाँ से इसको डायरेक्टली रीड कर सकते हो फ्लो चार्ट को, तो उसमें कोई भी केस नहीं आ रहा, डायरेक्ट आंसर है। मॉडल में दे रखा है फ्लो चार्ट टेक्निक का एक आंसर, तो 4 मार्क का 5 मार्क का IPCC इंटर से अगर आप आए हो तो डायरेक्ट आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना है अगेन, सॉरी 9 नहीं, 10 नहीं करना सर, 9 तो करना है। As an auditor during your interim visit at Marathon Limited, you observe that internal controls were not used throughout the period covered under audit. What are the control objectives you would like to consider to achieve this purpose? Control objectives. D Baba te mera. During your interim visit, you observe that internal controls were not in use throughout the period under audit. State the control objective. Question गया भाड़ में, आंसर रट्टा मालो नहीं समझेगा क्यों है क्या है, बस ऐसे ही। डी बाबा ते मेरा, डी बाबा तो ICS की डेफिनेशन से आ जाता है। टी से टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एम से मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स, ई से इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, आर से रैप हो गया, ए से चेंजेस इन अकाउंटिंग एंड ICS ड्यूरिंग द पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड एंड ICS ड्यूरिंग द पीरियड हो गया। डी बाबा ते मेरा 5 पॉइंट, डी बाबा के एक टी मतलब टाइमली प्रिपरेशन, फिर मेरा में 4 हो गए तो 5 में 10 पॉइंट याद करो। डी बाबा ते मेरा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, हिंट है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, व्हाट विल यू कंसीडर, डी बाबा ते मेरा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉक्स का है, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी ICFR पे ज्यादा वेटेज है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉक्स का है, वो भी छोड़ दीजिए। देन आराम से पढ़ना है। 12 आप आंसर करोगे। इन दी ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस ऑफ एक्स लिमिटेड यू वुड लाइक टू कंसिडर ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क 3 होते हैं, कंट्रोल, इनहेरेंट, डिटेक्शन। कौन सा लेवल? एट दी FS लेवल। मैंने आपको एक ही आंसर सिखाया अभी, उसमें आपको 2 सिखाया था, FS लेवल एंड
अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन लेवल. क्या पूछा? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन. सर एफएस लेवल पूछा. आई एम फन, आई एम फन, आई एम फन. देख लीजिए, आई एम फन, आई एम फन हो गया. आधा पेज भरा जाएगा, मार्क्स मिलेगा. और फिर यूट्यूब वाले बोलेंगे बाहर से आया है पेपर, बाहर से आया पेपर. आई एम फन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. As an order of Z Limited, you would like to examine limited examination of account balance test. What are the control objectives you would like the accounting control system to achieve to suit your purpose? Or ये अभी latest question. One of the objectives of ICS related to accounting system is that all transactions properly recorded in an appropriate manner to permit the preparation of financial information and to maintain accountability of the assets. To achieve this objective, certain matters should be ensured by accounting control. List down the matters to be ensured by accounting controls. Accounting controls. सर कुछ नहीं है. ये क्या है सर? वो अपन पता है ना, रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्टेड, एक मिनट पेंसिल, वैल्यूड, पोस्टेड, डिस्क्लोज, क्लासिफाइड, वही सब है यहाँ पर. क्या देखो, वेदर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, आर दे रियल, आर दे प्रॉपर्ली वैल्यू, आर दे टाइमली पोस्टेड, आर दे प्रॉपर्ली पोस्टेड, आर दे प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, आर दे प्रॉपर्ली समराइज्ड. हो गया आंसर. 7 पॉइंट. वेदर ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, रियल, वैल्यूड, timely posted, properly posted, classified and properly summarized. Easy. Then question number 14. क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14. Internal check system. New Life Hospital is a multi-specialty hospital which has been facing a lot of pilferage and troubles regarding the inventory maintenance and control. On investigation of the matter, it was found that the person in charge of inventory inflow and outflow from the storehouse is responsible for purchase and maintaining inventory records. Maker checker system. According to you, which basic system of control has been violated? Segregation of duties नहीं है सर यहाँ पर. Also list down the general condition. अगर आपको याद होगा, चंदू के चाचा को देखते देखते सबके सामने आके भगाया, सबके सामने आके भगाया, सबके सामने आके भगाया. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को देखते देखते सबके सामने आके भगाया. ये रहा. किसी का भी पूछे, ये तो जैसे भी उसका पूछा था हॉस्पिटलिटी का लगा, किसी का भी पूछे, कुछ भी पूछे, ये कॉमन आंसर. देयर शुड बी नो इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर वन ट्रांजैक्शन. Person having custody of asset and board should be different. More attention should be given to cash transaction by having automatic cash register. Employees should be encouraged to go on leave at least once a year. Duties should be divided properly. Duties should be changed without prior notice. Stock valuation should be done by people of different department. Assets should be safeguarded. Accounting procedure should be followed. Budget should be properly followed. थोड़ा सा क्वेश्चन में से उठा के चीज़ें लिख देने का, पर बाकी ढांचा यही है. बाकी ढांचा यही. किसी के पास अगर ये आंसर नहीं है तो उसकी फोटो खींच लीजिए. ठीक है. देन सैम्पलिंग रिस्क. अगर रिस्क वाला चैप्टर का सैम्पलिंग जो भी रिस्क के रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ के, एक सैम्पल रिस्क और एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क. सैम्पल रिस्क में दो होते हैं, एरर 1, एरर 2, टीओसी टीओडी, टीओसी टीओडी. याद है ऐसा कुछ? तो ये ऐसे 530 का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे 530 का. सर they have 5 entertainment center to provide recreational facilities for public, especially for children and youngsters at 5 different locations. Collections are made in cash. Specify the adequate system towards collection of money. Common answer, चंदू के चाचा, चंदू के चाचा. क्वेश्चन नंबर 17 वापस से सॉक्स के पहले छोड़ दीजिए इसको. पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, ये अपना सॉक्स का है, अभी हटा दीजिए. Question 18. The order of S Limited has commenced the start audit. What would be a concern for effectiveness of the system of internal check? Again, Chandu ke chacha. A direct question. अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहते हैं. X Limited has a policy and procedure manual containing various accounting policies and established procedure followed by it. Policies and procedures, ये पूरा क्वेश्चन छापा है. Policy and procedure means those policies and procedures in addition to control environment and accounting system which
The management of XYZ is established to achieve the entity specific objective. The management is responsible for maintaining accounting system, incorporating various internal controls to the extent that they are appropriate to the size and nature of business. There should be reasonable assurance for HBC and associates. The auditor that the accounting system is adequate and that all accounting information required to be recorded has in fact been recorded. Internal controls normally contribute to such assurance. क्या पूछा? Explain with the help of relevant essay. पहला 2 पॉइंट क्वेश्चन है. फिर as per essay 315 identify and assessing the ROM, so deals with the auditor's responsibility to identify and assess ROM in the FS to understand the entity environment. तो 315 को एक्सप्लेन किया. चौथा, it defines a system of internal controls as, फिर ये डी बाबा है, डी बाबा डेफिनेशन. Fifth, it states that the auditor should identify and assess the ROM whether due to fraud or error at the FS level, at the assertion level, through understanding an entity and its environment. कुछ नहीं है आंसर में. पहला 2 पॉइंट क्वेश्चन छापा, फिर ऐसे 315 का रेफरेंस दिया यहाँ पर और उसको एक्सप्लेन किया. चौथे में क्या किया? डी बाबा वाली डेफिनेशन लिख दी कि मतलब आईसीएस की क्या डेफिनेशन है. पांचवें में बोला कि ऑडिटर का ड्यूटी है टू आइडेंटिफाई असेस ROM whether due to fraud or error at the FS level, at the assertion level, through understanding the entity and its environment. फुल टाइम पास केस आंसर में, फुल टाइम पास. ठीक है, देख रहे हो तुम आंसर कैसा लिख रहा है. 20, the effectiveness of control cannot rise above the integrity and ethical values of the people who create, administration, monitor them. तो ये भी ICS वाला ही जो है अपना चैप्टर उसमें से आया हुआ है. So the effectiveness of control cannot rise above the integrity. Question छापा, integrity and ethical behavior are the product of entities' ethical and behavioral standards. How they are communicated, how they are reinforced. ठीक है, it includes example, management actions to eliminate, mitigate incentives or temptations that might prompt personnel to engage in dishonest illegal activities. And communication of entities, policy and integrity and ethical is an important, may include communication of behavioral standards to personnel through policy statements and code of conduct. तो ये डायरेक्ट आंसर है, याद हो तो ठीक है, नहीं तो रीड कर लीजिएगा खाली. रीड. Story. Mr. A decides to perform some test of control during an interim visit in advance to the year end. Control testing. Explain in detail. Question छापो. ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपको चेक करना है ड्यूरिंग योर विजिट इन द एडवांस ऑफ द पीरियड एंड. मतलब को बीच में ही चेक करना है. सर द फॉलोइंग अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड. द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरिम टेस्ट, कितना पीरियड रिमेनिंग है. मैं दिसंबर में चेक करेंगे, जैन फेब मार्च पेंडिंग है सर. Whether any changes have occurred in the accounting system and internal control system, the nature of amount of transactions and the events occurred, the control environment, especially supervisory control and NT of substantive procedure. तो ये एग्जाम एक क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ड्यूरिंग एन इंटरिम विजिट, क्या चेक करेंगे अपन? ये कंट्रोल्स मतलब ICS को इवैल्यूएट करने का है. फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड. क्वेश्चन नंबर 21 मार्क इंपॉर्टेंट. Explain the concept of integrated framework issued by committee of sponsoring organization, COSO framework, and mentioning its 4 out of 5 components. So 5 components होते हैं, and discuss the 3 categories of objectives. एक मिनट आ जाएगा वो. सर 5 कौन से? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कमीशन, मॉनिटरिंग. एंड ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है. ORC, ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ICS जब भी बनता है 5 फ्रेमवर्क के बाजू में बनता है. कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कमीशन, मॉनिटरिंग. जो अपन आंसर पढ़ रहे थे बार बार कंट्रोल का और रिस्क वाला और कंट्रोल एक्टिविटीज का, 3 का पढ़ रहे थे. यही 3 डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं जो अपन आगे पढ़ कर आए. और इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये यहीं से रट्टा मारना है. एग्जाम क्वेश्चन है ये भी. क्वेश्चन नंबर 23 मॉड्यूल का क्वेश्चन है. द ओनली क्वेश्चन इन कैलकुलेशन ऑफ ऑडिट रिस्क. गाइस द ओनली क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ ऑडिट रिस्क का ध्यान रखना. तो ये मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ. ये करके जाना है क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव में नहीं आया तो MCQ में आपको ऑडिट रिस्क कैलकुलेट करने को आ जाएगा. हमेशा ध्यान रखना ऑडिट रिस्क कैसे निकालते हैं अपन. देखो ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ ROM एंड डिटेक्शन रिस्क. ROM एंड डिटेक्शन रिस्क. फिर ROM कैसे आता है? इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क.
सर इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या होगा सर, हमेशा कुछ ना कुछ कर लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। सर कंट्रोल रिस्क क्या होता है सर, जितना अपन कंट्रोल कर पाएंगे, जितना कंट्रोल कर पाए, कितना कर पाए 75 कर पाए, तो रिस्क कितने का हुआ 25 का हुआ। वो कहता है कि कंट्रोल में 75 का कर पा रहा हूँ, मेरा सिस्टम 75% डिटेक्ट कर लेगा, तो 25 नहीं करेगा, तो 25 मेरा क्या हो गया सर, मेरा रिस्क हो गया। सर तो मेरा रॉम कैसे मिलेगा, इनहेरेंट रिस्क क्वेश्चन में दिया होगा, कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, रॉम मिल जाएगा। अब डिटेक्शन रिस्क कि भैया मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, खाली मेरा 60% ही डिटेक्ट हो पा रहा है वहाँ पर, तो मेरा रिस्क कितना हो गया 40%। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो रॉम को मल्टीप्लाई कर दोगे आप डिटेक्शन रिस्क के, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ओवरऑल ऑडिट रिस्क मिल जाएगा। ओवरऑल ऑडिट रिस्क द ओनली क्वेश्चन इन द मॉड्यूल जिसमें अपने को कैलकुलेशन करने को दिए। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ईजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। देन 24 भी एग्जाम क्वेश्चन है। CA Dev, a recently qualified chartered accountant, got his first internal audit assignment of a large manufacturing concern, Growth Limited. As an internal audit for Growth Limited, CA Dev is required to verify whether there are adequate records for identification and valuation of plant and machinery, loose tools and dies, whether any of these items have been obsolete and not in use. Draft a suitable audit program for the above. Suitable audit program for the above. तो ऑडिट प्रोग्राम लिखने का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या क्या चेक करेंगे। 24 ठीक है। 25th ये आई थिंक आरटीपी का मॉक का क्वेश्चन है। Padham Limited is engaged in the business of manufacturing of carpets. The company is planning to expand and diversify its operation. The management has increased its focus on internal control for ensuring proper governance. क्या पूछ रहा है अपने से? The management discussed with the stat auditor to ensure the steps to be taken. So the stat audit is risk-based audit, RBA, risk-based audit. Name the key steps and the phases involved, and also discuss the steps to be taken for risk-based audit. ठीक है, रिस्क असेसमेंट फेज को आपको एक्सप्लेन करने का है। साथ ही 3 होते हैं, assessing the ROM in the FS, designing and performing FAB that responds to the assessed risk and issue an appropriate report. तो 3 है वहाँ पर, पहले assess the ROM, design and perform the FAB and respond to the assessed risk, तीसरा issue an appropriate report। तो रिस्क असेसमेंट ये पहला पॉइंट, रिस्क रिस्पॉन्स हो गया, तीसरा रिपोर्टिंग हो गया। और क्या डिफाइन करने के लिए, रिस्क असेसमेंट का ये आंसर आपको याद करना पड़ेगा। 4-5 पॉइंट यहाँ से रट्टा मार लीजिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है तो एग्जाम का। क्लियर, चैप्टर इज ओवर। इनहेरेंट रिस्क के मैंने आपको आंसर बता दिए, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव वाला आपको आंसर बता दिया, डी बाबा थी मेरे वाला आंसर बता दिया। ठीक है, कैसे याद करना ऑडिट रिस्क के आंसर्स को बता दिया, रॉम इनटू डिटेक्शन रिस्क, फिर रॉम के 2 बच्चे होते कंट्रोल एंड इनहेरेंट, मल्टीप्लाई कर दो आपको ऑडिट रिस्क मिल जाएगा। समझा आपको? क्लियर गाइस? ठीक है, सो आई विल बी स्टॉपिंग दिस क्लास हियर। फिस्कल लॉ का मैं एक अलग से सेशन लूंगा, बिकॉज आई हैव अ बैक टू बैक सेशन, तो फिस्कल लॉज रह गया है, फिस्कल लॉज का मैं अलग से लूंगा। अभी 2 दिन क्लास नहीं है क्योंकि मैंने इंटर की क्लास शेड्यूल की हुई है, क्योंकि उनका भी चीज़ें चल रही है, उनको भी एमसीक्यूज कराने हैं। तो आप शेड्यूल चेक कर लीजिएगा। आई थिंक एक सैटरडे को रखा और एक मंडे को रखा हुआ है जहाँ मैं चैप्टर्स कराऊंगा, एंड फिस्कल लॉस का मैं अलग से एक सेशन शेड्यूल करके आपको बता दूंगा। जितना भी चैप्टर मैंने करवा दिया 8 + 2 10। ट्विंकल नहीं, वो अलग आंसर है, वो इंटरिम विजिट में अपने को कंट्रोल चेक कर रहे हैं। डी बाबा ते मेरा नहीं चलेगा। ठीक है, तो डू चेक द शेड्यूल एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। 10 चैप्टर के मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए जितने भी आ रखे एग्जाम में आज तक के। ठीक है, फिर 2 दिन बाद क्लास होगी आपकी, सैटरडे को होगी और मंडे को होगी, देख लीजिएगा शेड्यूल, एंड उसका मैं फिस्कल लॉस का एक अलग से सेशन ले लूँगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इंटरनेट का जीबी आपकी वसूल हो गई होगी। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+, व्हिचएवर इज एलियर, कीप ऑन रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, कीप स्माइलिंग, डरो मत, होगा इस बार होगा, ऐसे करके देखो, यही होता है। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड डू फॉलो, डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अपने दोस्तों को भी बता देगा कि यहाँ से रिविजन कर ले। ठीक है, बाय।